Good morning class, welcome back. We are continuing with our chapter of computer creating web pages using HTML. Today we are going to continue with our font styles, that is changing your font style. See, this doesn't include font tag. ये font tag में नहीं है, अलग tag है. 3 tags are there to change your font styles: B tag, I tag, U tag. All the 3 tags are your container tag, means it requires closing. Okay. B tag is used to make your font bold. I tag is used to make your font italic. U tag is used for making your tag underlines. So see, take an example. I have written B bold. Then I will close my B tag. So on my web page, the bold word will be printed as bold, completely bold. Okay? And suppose I want all the 3 things to be done together, like B, I, U. Okay? Then here your text, and in HTML we have to follow the format like the very recent open tag will close the first. Here my recent open tag is U, so U will close first. Then I will close I tag. Then I will close B tag. Clear? 3 together also you can use. Different also you can use. So what will happen in this example? My text would be bold, italic as well as underline. Now, next tag is mark you text. Mark you text means it will scroll the text whatever you have written. It will scroll. घूमेगा. ठीक है, स्क्रीन पे घूमता रहेगा. So, mark you tag is written as complete mark you, spell it MARQUEE. Okay? Then you have to write the text which you want to scroll it. Then you have to add your mark you tag. It's a container tag, means closing is compulsory. Then adding comments. Comments are nothing but it is some sort of instruction which if some person is seeing your code and you want to specify that, suppose I want to specify B. B is the bold tag. This will going to make my text as bold. So to give that sort of explanation, I am going to use my comment tag. It will not be judged by your explorer. ये आपका print नहीं होगा, ना ही execute होगा आपके web pages पे, सिर्फ user के understanding के लिए, ठीक है? ना ये आपको screen पे दिखेंगे, ना कुछ होंगे. So comment tag के लिए as such there are no tags. Only before your text you have to write an exclamatory mark. Okay? No opening, no closing. Then we are going to see setting background color. अब web page normally क्या रहता था? White, पूरा white, ठीक है? हम white को क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से color दे सकते हैं. So to specify color to your background, we are having body tag का attribute BG color. BGCOLOR. color का spelling बिल्कुल गलत नहीं लिखना है. Body space because body का attribute है. BG color is equal to color का नाम. Angle close. So जो भी कलर आप स्पेसिफाई करोगे वो आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में डिस्प्ले होगा. Clear? Then inserting image to the web page. So tag is img. Attribute is source. Image कहाँ से आ रही है? And you have to specify the location. Location का मतलब है path. वो फाइल आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, वो इमेज आपके पीसी में होनी चाहिए, कहीं पे भी, चाहे लाइब्रेरी में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं पे भी इट शुड बी देयर. ओके? तो पूरी की पूरी लोकेशन हम कॉपी पेस्ट करेंगे विद द नेम ऑफ दैट इमेज, विद द एक्सटेंशन. आई विल शो यू प्रैक्टिकली व्हेन आई विल डेमोंस्ट्रेट. ओके? हाइट एंड विड्थ, 2 more attributes to adjust the height and width of that image. Okay? Then setting image as a background. Here what we did in the BG color, we selected the color for the background.
बैकग्राउंड से आएगा, ओके। और जो इमेज टैग से आएगा वो कुछ प्लेस पे आएगा, जैसे ये आपका वेब पेज है और ये है आपकी इमेज, क्लियर। तो ये पूरा आपका वेब पेज कवर नहीं कर रहा है, बट बैकग्राउंड से जो इमेज आएगी दैट विल कवर एंटायर वेब पेज, क्लियर। और उसके ऊपर आपके प्रोग्राम के थिंग्स होंगे, जो भी आपने लिखे होंगे इमेज के ऊपर लिखेंगे, क्लियर। सो सेम मेथड, तो आपके बॉडी टैग के बेसिकली 2 एट्रीब्यूट्स, कलर एंड बैकग्राउंड, दोनों एक साथ कभी यूज नहीं कर सकते, हमेशा एक बार में एक ही यूज होगा। या तो आप बीजी कलर सेट कर लो या तो आप बैकग्राउंड सेट कर लो, क्लियर। बैकग्राउंड का भी सेम मेथड है, बैकग्राउंड में जो भी आपको इमेज चाहिए वो इमेज आपके पीसी में होनी चाहिए और उसका हम पूरा का पूरा लोकेशन विद द नेम ऑफ दैट इमेज एंड एक्सटेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर। So these all are the things which we are going to see in our today's video. So kids, we are starting with a demonstration of the tags which all I have explained you in our live video. So पहले हमने in our yesterday's video I have said one format. क्या था सबसे पहले? और सबसे पहले टैग कौन सा आएगा आपको याद रखना है, आप बोलिए यस, HTML। सेकेंड टैग हेड या टाइटल, अगर याद नहीं आ रहा है तो ABCD याद कर लेना, पहले H आता है बाद में T आता है। सो वी विल राइट हेड फर्स्ट, देन यस टाइटल। टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे इट वुड बी प्रिंटेड ओवर वेयर, अंडर माय टैब। वेरी गुड, डेमो नाम दे रही हूँ अगेन। देन क्या एंड होगा, क्या एंड होगा क्लास? यस टाइटल। अगर मैंने टाइटल स्मॉल लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज केस सेंसिटिव नहीं है। अब क्या आएगा? वी विल बी क्लोजिंग आवर हेड, देन व्हाट आई विल स्टार्ट, चलो जल्दी जल्दी बताओ। बॉडी टैग आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वेरी गुड, सो ये फॉर्मेट हमें हमेशा याद रखना है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉन्ट स्टाइल से। सो वेरी फर्स्ट टैग बी टैग। बी किस लिए यूज होता है? फॉर माई बोल्ड, ओके। दिस इज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, okay, then end your B tag। क्यों? क्योंकि कंटेनर टैग है। एंडिंग बॉडी, देन एंडिंग HTML। फाइल में जाइए, सेव करिए, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ट्रायल 2 डॉट HTML भूलना नहीं है। मिनिमाइज ट्रायल 2 is here, open it। So this is my output, टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा चेंज। नेक्स्ट टैग इज माई आई टैग। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। दिस इज टू मेक इटैलिक, देन एंडिंग आई। सेव करते जाना है, एक एक लाइन ऐड करोगे तो आपको सेव करना कंपल्शन है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। F5। अब आपने एक चीज देख ली, आ गया सेम लाइन में, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया। अब हम लगाएंगे ब्रेक। ये लिखने के बाद आप लगा दीजिए BR। अब आप वापस से सेव करिए एंड रन इट, F5। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है। यस, नेक्स्ट लाइन में चला गया। Now again I will write BR tag because I want one more tag which is to be explained, U tag।
यू टैग किस लिए यूज होता है? दिस टू मेक अंडरलाइन, ठीक है। एंडिंग यो, कंट्रोल प्लस एस, देन रिफ्रेश, अंडरलाइन आ गया। अब ये तीनों भी आप एक साथ करना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी है हमारे पास। ये सब हम हटा देते हैं, आई एम रिमूविंग, ठीक है। अभी मैंने आपको डिफरेंट समझाया है, अब एक ही बार में तीनों भी टैग एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी भी करना है, इटैलिक भी करना है, मुझे अंडरलाइन भी करना है। अब एंड करते समय आपको ध्यान रखना है जो सबसे लेटेस्ट ओपन हुआ है, द टैग विच इज बीन ओपन वेरी रीसेंट नीड्स टू बी क्लोज्ड वेरी फर्स्ट, मीन्स यू टैग इज ओपन वेरी recent, so I will close U tag first, then I will close my I tag, then I will close my B tag. अगर अब आप ब्रेक हटाना चाहते हो then you can remove it, yours wish. Control plus S, क्योंकि अब सिंगल लाइन है। This is to make text, भी चेंज कर दिया मैंने। Now we will see the output. Have you seen? It is underlined, it is italic, it is bold even. Now next thing which we are going to see is my marquee tag. Marquee tag is a tag which is used to scroll the things. So what I will do, I will write marquee tag. Marquee की spelling देख लो आप, MARQUE. This is to scroll, ending marquee. एंडिंग लगेगा बिकॉज कंटेनर टैग है। कंट्रोल प्लस एस एंड सी द आउटपुट। देखिए स्क्रॉल होके आ रहा है, घूम रहा है। दिस इज टू स्क्रॉल, दिस इज टू स्क्रॉल, दिस इज टू स्क्रॉल, दिस इज टू स्क्रॉल, दिस इज टू स्क्रॉल। क्लास, हियर आई हैव एडेड। अब मार्क्यू आपको छोटा दिख रहा था तो मैंने वीडियो को पॉज किया था, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। मैंने इसमें फॉन्ट टैग का यूज कर लिया। सी व्हाट आई डिड, वन टाइम आई विल शो यू। हमारा प्रोग्राम ऐसा था, ठीक है, मार्क्यू टैग ऐसा था। अब मुझे चाहिए था मार्क्यू में जो दिख रहा है वो उसकी विजिबिलिटी बहुत छोटी थी, अब मुझे उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है सो दैट आई कैन सी द थिंग्स वेरी क्लियर। So what I will do, I will write font. फॉन्ट का कौन सा एट्रीब्यूट है जो साइज बढ़ाने के लिए हेल्प करता है? साइज 20। अब मार्क्यूज के पहले बाद ओपन हुआ है फॉन्ट, तो सबसे पहले क्या क्लोज होगा? फॉन्ट, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कंट्रोल प्लस एस आउटपुट। ओके, अब हमें ये काफी बड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इजी हो गया। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वी कुड ऐड फॉन्ट टैग ओवर हियर ऑल्सो, फॉन्ट साइज टू 20। पर आप कब फॉन्ट लेंगे तो फॉन्ट को क्लोज करना आपका ड्यूटी है, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस। अब आप डिफरेंस इन आउटपुट देखिए, दिख रहा है। फॉन्ट टैग का हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, लिमिटेड जगह पे यूज कर सकते हो, और कहाँ जहाँ आप यूज कर सकते हो मैं हर एक प्लेस बताऊंगी आप कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे आगे आपके चैप्टर में टेबल है, टेबल में फॉन्ट टैग यूज करोगे तो पागल बन जाओगे, हर एक स्टेटमेंट के लिए लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ कुछ कुछ जगह है जहाँ हम यूज कर सकते हैं हमारे फॉन्ट टैग को टू एनहांस द फीचर। अब जब साइज एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है सो वी विल मेक द कलर ऑल्सो, कलर इज इक्वल टू रेड। तो अब जो भी स्क्रॉल हो रहा है वो रेड कलर में दिखेगा और फॉन्ट साइज रहेगी 20, ठीक है। आपको एग्जाम्स में प्रोग्राम्स आएंगे, ये चैप्टर जब आपके एग्जाम में होगा, सो दे विल गिव यू द आउटपुट। मतलब ये जो आउटपुट स्क्रीन दिख रही है आपको वैसा आउटपुट देंगे, वो देखकर आपको उसका कोडिंग बनाना है। कोडिंग बनाना इन द सेंस ये HTML कोड आपको उसके हिसाब से लिखना है आउटपुट देखने के बाद। क्लियर है? जैसे मैंने ये आउटपुट देखा,
So I got to know that the first line states me to write B, I and U tag. Then the second line states me to write the marquee tag because it is scrolling. So with the help of this type of output, I can create my code, because I have said till body everything is same. Rest under the body you have to change according to the output. Okay. Now we are proceeding forward. I said comments. What are comments? Comments is comment कोई टैग नहीं है, सिर्फ एक साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है. दिस इज टू गिव information to the code reader. बनाने वाले को तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा क्योंकि उसने बनाया तो उसको तो सब पता है. जो कोड पढ़ रहा है उसको इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए लगेगा. ठीक है. Ctrl+S. इसका इफेक्ट मेरे आउटपुट पे कुछ भी नहीं होगा. मैं इसे रिफ्रेश भी कर लूंगी तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है मेरे आउटपुट स्क्रीन पर, क्योंकि वो मेरा कोड कंपाइल नहीं करता है. ये वाला लाइन उसके लिए टोटली कमेंट है, नहीं दिखता उसको. ठीक है. दिस इज जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट टैग, इट इज नॉट अ टैग, it is actually an attribute. Okay. So what I will do, I will specify my one attribute is there of my body tag, which is bg color. bg color आपका attribute है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए. अभी हमने रेड तो ऑलरेडी टेक्स्ट का कलर लिया है, सो आई विल मेक इट ब्लू. ब्लू कर दिया. Ctrl+S. अब आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है. ठीक है. पूरा का पूरा स्क्रीन हो गया मेरा कंप्लीटली. इट इज लाइक ब्लू. ओके. नेक्स्ट देर आर एक्चुअली two attributes kids of my body tag. There are two attributes. First is bg color, सेकेंड इज बैकग्राउंड. बट दोनों भी एट्रीब्यूट आप एक साथ यूज नहीं कर सकते. जैसे आपने यहाँ पे किया, फॉन्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे हमने एक ही साथ यूज कर लिए. यहाँ पे हम पेज भी ऐड कर सकते हैं, बट बॉडी टैग के आप एट्रीब्यूट एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, एक भी एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो हम सेकेंड एट्रीब्यूट अब यूज कर रहे हैं. उसको यूज करने के लिए हमने बीजी कलर हटा दिया है. अब यहाँ पे हमें डालना है इमेज का लोकेशन. Now take an example. I am having any of the image over here. Just see. Okay, I'm not having any image. I'll just print screen. Print screen. I'll open Paint. Okay class, now this time I am having one image on my desktop. ठीक है. I will right click on that image. क्या करेंगे? right click करने के बाद you will get properties. Okay. Click on that property. You will get the location of that image. Location is right now C drive. Under C drive user folder. User folder के अंदर I am having one more folder which is HP. Under that I am having one desktop folder. So what I will do, I will place my cursor. Click करूँगी और shift button की help से entire thing I am going to copy. Ctrl+C and I will see the name of this file. Its name is untitled.png. Okay. So I had copied and now what I will do, I will just paste it. See, I have used double quote equal to double quote. Then what I will do, जैसा मुझे स्लैश यहाँ पे दिख रहा है सेम टाइप ऑफ स्लैश आई एम गोइंग टू यूज. ऐसा नहीं, ऐसा. नाम क्या था मेरे फाइल का? untitled.png. एक्सटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक्सटेंशन नहीं लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. ओके. Ctrl+S.
untitled.png, correct. Now what I will do, I will F5. It has not executed. कोई वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, सो कोई बात नहीं है. वी विल ओपन दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ आवर other browser, Google Chrome. See, you people have seen कि it is working. See, everything is visible. I have taken a print screen. हाँ, आप कोई भी इमेज पीछे लगा सकते हो, और मेरे पास कोई इमेज थी नहीं, that's why I have did print screen. अब क्या हो गया, बैकग्राउंड में कलर के प्लेस में क्या आ गया, मेरा इमेज, और मेरे इमेज के ऊपर मेरे पूरे के पूरे टेक्स्ट दिख रहे हैं. क्लियर है? जो भी मेरी इमेज है सारी इमेज डिस्प्ले होगी. वन कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर आई हैव स्पेसिफाइड द लोकेशन ऑफ माई फाइल. अगर ये लोकेशन में ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो इमेज नहीं दिखेगी आपको. जैसे कि ये नाम गलत हो गया. Ctrl+S. अब मैं इसे करूँगी एग्जीक्यूट. नहीं आएगी इमेज, बिकॉज लोकेशन में मिस्टेक हो गई है. तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, 100% नेम सही चाहिए, तब जाके इमेज आएगी आपके आउटपुट स्क्रीन पे, अदरवाइज इट इज नॉट विजिबल. क्लियर क्लास? नेक्स्ट थिंग इज योर इमेज टैग. अब इमेज टैग क्या है? आप बोलोगे मैम अभी तो हमने एक इमेज डिस्प्ले करवाई, वो इमेज हमारे बैकग्राउंड में थी. अब हम एक इमेज डिस्प्ले करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैग img. उसका एट्रीब्यूट है src, सोर्स. पूरा सोर्स नहीं लिखेंगे, src इज इक्वल टू, जैसे हमने बैकग्राउंड सेट किया है सेम वे में हम उसे सेट करेंगे. अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है किड्स इन माई लैपटॉप, सो आई हैव टेकिंग प्रिंट स्क्रीन का हेल्प, वही कर सकते हैं. /untitled.png डबल कोट. अब इमेज आपका, one more time I will be saying, image is an empty tag, means close img नहीं लगेगा. ठीक है, Ctrl+S. अब आप इसका आउटपुट देखिए. F5. आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस दिख रहा है? यस, 100% डिफरेंस दिख रहा है. ये जो आया है नीचे के साइड से, दैट इज माई इमेज. ठीक है, ऊपर का ये मेरा BII टैग हो गया, ये हो गया मार्क्यू टैग, नीचे का हो गया मेरा ING टैग. मेरे पास कोई दूसरी इमेज नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैड यूज्ड दिस इमेज ओनली. अब इसने मेरी पूरा का पूरा बैकग्राउंड कवर नहीं किया है. ओके, यहाँ पे मेरे पास एडिशनल एट्रीब्यूट भी है, लाइक विड्थ, पर आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सो आई हैव नॉट यूज्ड. एंड हाइट आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड. अदरवाइज एट्रीब्यूट हमारे पास है. ओके, सॉरी, वन मिस्टेक आई हैव डिड. आई नीड टू हैव डबल कोट. हमारे पास डबल कोट होना कंपल्सरी है. मैंने डबल कोट नहीं डाला, दैट इज व्हाई इट हैज नॉट टेकन image properly. Still it is not supporting. Height is equal to 145. Ctrl+S. Okay, very difficult to understand. Oh, so sorry. See kids, यहाँ पे आपका इमेज आ गया है. I'll increase the size because it was not visible to me also. तो आपको क्या दिखेगा? Ctrl+S and F5. See, यहाँ पे इमेज आ गई है. ये आपका है इमेज टैग. इमेज टैग की हेल्प से हम इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं. Okay. So for today I am stopping over here.
If still confusion is there, you can ask me.